Hi children, welcome to my channel. So today we are going to learn about two things. One is the menstrual cycle in women and the development and birth of a baby. Okay, so in the last lesson, video we learned about how the fertilization takes place in a human being. Yes, we learned about how fertilization takes place by the union of the male and the female gametes. Yes, and how the sex is determined in a child. X and Y chromosomes, X and X होती है लड़की, X and Y होता है male. So we also learned that the man is responsible for contributing to the sex of the child and not the woman. So now we will learn about the menstrual cycle in a woman, and with that, along with that, we will learn about how the fetus is formed. Okay, so now we can see this diagram here. In this diagram we learned in the female reproductive system about how the reproductive system of a female looks like. Yes, so this is the oviduct. This tube that you see is the oviduct. Then this is the ovary. This is the uterus here where the implantation of the fetus will take place. Okay, and the lower portion is not seen. So this is important for us to understand the menstrual cycle that takes place in a woman. Okay, so now let's understand what happens in a menstrual cycle. Okay, now change in the female reproductive system at puberty it takes place. Yes, when the girl reaches the age of anywhere between 10 to 17 years of age, she reaches maturity. Okay, or puberty. Okay, and when she reaches puberty, there are changes in the reproductive system that takes place, and these changes are repeated in a cycle. ये जो चेंजेस होते हैं ना, जो प्यूबर्टी के बाद जब एक लड़की मेच्योर हो जाती है, तो चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम are repeated in a cycle. That's why it is called a menstrual cycle. It is a repeated cycle. It takes place every 28 to 30 days. Okay, the cycle repeats every 28 to 30 days and is known as the menstrual cycle. Now this menstrual cycle is controlled by 4 hormones. Which are the 4 hormones? Follicle stimulating hormone, also called as FSH, luteinizing hormone, also called as LH, estrogen and progesterone. Okay, which are you have to remember these 4 hormones that are controlling the menstrual cycle in a woman. Okay, which are the 4 hormones? FSH या तो follicle stimulating hormone, LH या तो luteinizing hormone, estrogen and progesterone. Okay, now the menstrual cycle is controlled by a complex orchestra of hormones. ये जो hormones हमने पढ़े अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पूरे प्रोसेस में. ठीक है, तो ये सिंपल नहीं है बहुत, मतलब अभी हम जो पढ़ेंगे वो जितने सिंपली समझ सकते होते सिंपली समझेंगे, लेकिन बॉडी के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस चालू है जिसकी वजह से ये हॉर्मोन्स और ये रिलीज अलग अलग टाइम में रिलीज होके अलग अलग फंक्शन करते हैं. ठीक है, सो which are the organs that produce the menstrual cycle is the hormones that are produced by 2 structures in the brain and also in the ovary. brain के 2 structures कौन से जो ये control करते हैं वो है pituitary gland and the hypothalamus gland जो brain में present है. ठीक है, वो and the ovary along both of them together produce these hormones. The pituitary gland, where it is located? It is located at the base of the brain. आपके सिर के जो पीछे के पोर्शन में एकदम जो बेस, ब्रेन का एकदम बेस है, उधर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड. नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करता है? द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. ओके, द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और द FSH. Okay, this hormone causes several follicles to rise on the surface of the ovary. ये जो ovary है ना, उसके सरफेस में when this hormone is released by the pituitary gland, क्या होता है? Many follicles are formed on the top of the ovary. बहुत सारे follicles यानी कि छोटे छोटे से हम लोग के उसके अंदर पानी जैसा रहता है. मतलब कैसे पता? फॉलिकल ऐसा है जिसके हम फुंसी देखते कभी कभी, उसके अंदर पानी जैसा रहता है, वैसे टाइप कैसे बम्प्स जैसे स्वेलिंग जैसा ना फॉर्म होने लगता है ऑन टॉप ऑफ द ओवरी. ठीक है, नाउ
what happens, these fluid filled pumps contain, each contains an egg. ये जो pumps form हुए हैं ना on top of the ovary, all of these pumps contain an egg. Okay, so how it is, how these pumps are formed? When the pituitary gland releases the follicle stimulating hormone या तो FSH. जब pituitary gland FSH release करता है, that time these bumps are formed on top of the ovary and each of these bumps contains an egg. Now this bump start developing. This developing follicle secretes which hormone? Estrogen. अभी देख रहे हैं कि सब अलग अलग क्या क्या काम करें. पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH रिलीज किया जिसकी वजह से फॉलिकल्स फॉर्म हुए. अब ये फॉलिकल्स जैसे बढ़ते रहते हैं, इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन. ओके, and this developing follicle secretes estrogen. Now endometrium of the uterus starts to develop under the effect of estrogen. ये एंड्रोमेट्रियम एक लाइनिंग है जो यूट्रस का, दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग व्हेन दिस एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड. ठीक है, ये सब जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, इट इज हैपनिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ अ बेबी बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है किस लिए हो रहा है? ताकि एक नया ह्यूमन बीइंग अगर बन गया, सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है. अगर बच्चा फॉर्म हो गया तो इट विल टेक केयर ऑफ द बेबी, यूट्रस विल टेक केयर ऑफ द बेबी. इफ नॉट, it will shed the lining. ठीक है, so let us see what happens. First what happens, the pituitary gland releases the follicle stimulating hormone and follicles start forming on the ovary. See, follicle stimulating hormone वो हार्मोन है जो ये follicles को stimulate करता है ऊपर आने के लिए. ठीक है, और these fluid filled bumps contain what? An egg. Now this developing follicle secretes estrogen. जब ये estrogen रिलीज होता है तो क्या होता है? द यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो डेवलप होने लगता है. यूट्रस का एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डेवलप अंडर द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन रिलीज्ड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल. इवेंचुअली वन ऑफ दिस फॉलिकल बिकम्स डोमिनेंट. क्या होता है फाइनली? इतने सारे जो फॉलिकल्स फॉर्म हुए उसमें से सिर्फ एक डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब एक आगे आ जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा डेवलप या मेच्योर हो जाएगा. ठीक है, एंड और वो जो सबसे ज्यादा मेच्योर हो गया, दैट विल आल्सो डेवलप अ सिंगल मेच्योर एग. ठीक है, और बाकी को क्या होगा? बाकी सब वापस नीचे रेसीड हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस, वन ऑफ दिस फॉलिकल्स बिकम्स डोमिनेंट एंड विद इन इट डेवलप्स अ सिंगल मेच्योर एग. द अदर फॉलिकल्स श्रिंक बैक, यानी कि वापस चले जाते हैं. ओके, इफ मोर देन वन फॉलिकल रीचेस मेच्योरिटी, दिस कैन लीड टू ट्विंस और मोर. ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा फॉलिकल्स मेच्योरिटी रीच करके मेच्योर एग रिलीज कर देंगे. तो इस ऐसे कैसे, अभी तो एक ही एग रिलीज हमने दिखाया इधर. अगर सपोज 2 फॉलिकल स्टिमुलेट होके मेच्योरिटी में आ गए हैं, बाकी चले जाएंगे, कभी 3 हो जाते, कभी 4 होते, तो क्या होता है? उतने एग्स भी मेच्योर हो जाते हैं और रिलीज होते हैं. ठीक है, तो जो बाकी है, जो नहीं मेच्योर है, वो क्या होते हैं? दे श्रिंक बैक. ठीक है, एंड इफ मोर देन वन इज रीचिंग मेच्योरिटी, व्हाट हैपेंस? इट कैन लीड टू ट्विंस. Okay, when developing follicle completes its development, it bursts under the effect of the luteinizing hormone. अभी आप देखो तीसरा हार्मोन प्ले में आ रहा है, कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अभी जब ये फॉलिकल जो मेच्योर हो गया और उसके अंदर एग है, जब वो फुल मेच्योरिटी में पहुंच जाता है तो क्या होता है? इट बर्स्ट, टूट जाता है, फूट जाता है. ठीक है, उसके अंदर है ना फ्लूइड, उसके अंदर एग है, मेच्योर एग है. तो जो फॉलिकल मेच्योरिटी पे पहुंच गया है वो क्या होता है? वो फूट जाता है. कौन से हार्मोन की हेल्प से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से, LH. ओके, द LH हेल्प्स इट टू बर्स्ट. ठीक है, इफ व्हेन द डेवलपिंग फॉलिकल completes its development, it bursts under the effect of the luteinizing hormone, and what is released? The oocyte is released. ओके, तो फाइनली जब वो फॉलिकल मेच्योर होके बर्स्ट हो गया तो क्या रिलीज हो गया उसके अंदर से? oocyte रिलीज हो गया. ये तो हमारा मेन पर्सन है ऑफ इंटरेस्ट, oocyte. ओके, तो क्या होता है? ये जो प्रोसेस है ना, जहां oocyte रिलीज हुआ है, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. ओव्यूलेशन होने से ही फर्टिलाइजेशन होता है. तो अगर सही टाइम में, ओव्यूलेशन के टाइम में अगर स्पर्म इज प्रेजेंट तो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. अगर स्पर्म वॉज प्रेजेंट इन द दिस ट्यूब, व्हाट विल हैपन? The sperm will fertilize the egg and fertilization will take place. A baby will be
formed. Okay, the release of the mature egg happens on about day 14. हमने देखा था कि जो menstrual cycle का days कितना है 28 to 30 days है. तो ये 28 to 30 days के mid में यानी कि बीच में ही ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है. जो oocyte रिलीज हुआ है, जो मेच्योर एग रिलीज हुआ है, इट हैपेंस ऑन और अबाउट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज अबाउट द 14th और 15th डे, as a result of a surge in the LH and FSH over the previous day. तो क्योंकि luteinizing hormone था, because of which the follicle burst and the oocyte was released. Okay, now after release the egg enters the fallopian tube. Okay, this is the fallopian tube. Now once the egg is released, what happens? It enters the fallopian tube where fertilization may take place. अभी fallopian tube में घुस गया है. अभी इधर फर्टिलाइजेशन होता है. इफ द स्पर्म इज प्रेजेंट, अगर जब ये oocyte रिलीज हुआ और स्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, व्हाट हैपेंस? we'll see what happens. That will complete the menstrual cycle and take you to the next menstrual cycle. But if the sperm is present and fertilization takes place, then a baby is formed. We'll see this after we understand the menstrual cycle. वो repeated cycle कैसे होता है. तो for the time being, we'll assume that the sperm is not present in the fallopian tube. So what happened? The oocyte is released, right? Once the egg is released, the follicle seals over. अभी जो follicle जो फूट गया था इधर, ये follicle suppose ये mature हो गया पूरा और इसने burst करके एक oocyte रिलीज किया. ठीक है, अभी क्या होता है? follicle फिर से सील हो जाता है, बंद हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड द, जो सील हो गया ना, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, कॉर्पस, CORPUSLUTEUM. ओके, तो क्या हो गया? ये फॉलिकल जो बर्स्ट होके जिसने oocyte को रिलीज किया है, अभी उसके बाद क्या होता है? एक बार रिलीज कर दिया तो बाद में वापस बंद, कवर हो जाता है, सील हो जाता है, और उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग, लेवल्स ऑफ FSH एंड LH डिक्रीज, है ना. अभी LH जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही ये फूटा था, करेक्ट. तो अभी जब ये फूट गया है और एग रिलीज हो गया तो क्या होता है? फिर से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है. और FSH, जिसने ये पहली बात तो फॉलिकल स्टिमुलेट किया था, किसने? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने. तो जब ये एक बार ये प्रोसेस खत्म हो गया, जहां oocyte रिलीज हो गया, तो फिर से FSH एंड LH स्टार्ट टू ड्रॉप, लेवल ड्रॉप हो जाता है. ओके, नाउ द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन. अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ है इधर, अभी ये क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा फोर्थ हार्मोन. ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन. ओके, अभी ये सब प्रोसेस हो गया, oocyte रिलीज हो गया, ये इट हैज सील्ड ओवर. वंस इट हैज सील्ड ओवर, इट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम. नाउ द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन. अभी FSH एंड LH का ये प्रोडक्शन कम हो गया है ना, इट डिक्रीजेस because its work is over. Now what hormone is released? Progesterone. Progesterone is produced by the corpus luteum. Now if fertilization occur हो गया, suppose fertilization हो गया, तो क्या होगा? The corpus luteum continues to produce progesterone which prevents the endometrial lining from being shed. ठीक है, अभी यूट्रस में जो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग फॉर्म हो गया था, इनिशियली हमने जो देखा था एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग फॉर्म हुआ था, वो उसको क्या होता है? ये प्रोजेस्टेरोन जब तक ये प्रोड्यूस कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, तब तक वो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग विल बी देयर, इट विल नॉट बी शेड. लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, ये खत्म हो जाता है, ये फिर से डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, अभी देखो ये जो फॉलिकल्स थे हमने देखा, ये आपका फॉलिकल था, करेक्ट. फॉलिकल्स, अब ये फॉलिकल्स में FSH कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ FSH, करेक्ट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से. हाँ, बाद में वो मेच्योर होके उन्होंने जब बर्स्ट हुआ तो क्या हो गया था? एस्ट्रोजन वॉज, जब ये मेच्योर हो रहे थे तब एस्ट्रोजन वॉज रिलीज, जिसकी वजह से एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग वॉज फॉर्म्ड, करेक्ट. व्हाट हैपेंड? लेट अस जस्ट रिकैप इट. इसमें जब ये FSH, पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH रिलीज किया था, क्या होता था? follicle has risen on the surface of the ovary. Now these fluid filled pumps, what do they contain? They contain an egg.
जब दिस फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल सेक्रेट्स एस्ट्रोजन, तब क्या होता है, ये यूट्रस के लाइनिंग में एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर्म होता है. एंडोमेट्रियल लाइनिंग ये किस लिए है, टू प्रिपेयर द यूट्रस टू अलाउ द बेबी टू अटैच. ओके ना. लेकिन अभी क्या हो रहा है, एग रिलीज हो गया है. ठीक है, अभी एग रिलीज हो गया है. एग रिलीज होने की अंडर हुज इफेक्ट इज द एग रिलीज्ड, अंडर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इफेक्ट द एग इज रिलीज्ड. And once the egg is released, the FSH and LH starts dropping, the levels start dropping. लेकिन जो फॉलिकल की वजह से ये क्या बोलते हैं, ये एग रिलीज हुआ था, वो क्या होता है, उसको सील होने लगता है अपने ऊपर. और क्या उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं. हाँ, और ये जो इसने oocyte रिलीज किया है, इट हैज गॉन इनटू द फेलोपियन ट्यूब. नाउ ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ हार्मोन द प्रोजेस्टेरोन. अभी ये जब तक, कब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा, जब तक ये अगर ये जो oocyte है अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये इट विल कंटिन्यू टू रिलीज प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, वो क्यों प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है, क्योंकि एंड्रोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो डीजेनरेट नहीं होना चाहिए. ओके, सो द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन. इफ फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड, then the corpus luteum continues to produce progesterone. ठीक है, क्योंकि ये लाइनिंग शेड नहीं होना चाहिए, एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग शुड नॉट शेड. तो इफ द फर्टिलाइजेशन हैज नॉट अकर्ड, अगर नहीं हुआ तो देन व्हाट हैपेंस, द कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट्स, खत्म हो जाता है, विच कॉसेज द प्रोजेस्टेरोन लेवल्स टू ड्रॉप. उसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन ने प्रोड्यूस करा था वो भी कम हो जाता है. ओके, विच कॉजेज द एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग टू शेड. तो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग इनिशियली एस्ट्रोजन की वजह से फॉर्म होने लगा था, अभी प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो ये लाइनिंग भी शेड होने लगता है. तो इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, द कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स इनएक्टिव. ठीक है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये इनएक्टिव हो जाएगा अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो. ठीक है, 24 आवर्स के अंदर. दैट इज द ओनली विंडो इन विच द एग कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म. ओके, नाउ if oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transforms into corpus albicans. Okay, अभी ये corpus luteum था. ठीक है, अगर if not fertilized, if it is not fertilized, then this is called corpus albicans. Corpus albicans. Okay, if not fertilized, it is called corpus albicans. And if it is fertilized, the corpus luteum will continue to produce progesterone. Okay, now due to this secretion of estrogen and progesterone stops completely. जब ये फॉर्म हो गए corpus albicans, progesterone और estrogen का प्रोडक्शन completely बंद हो जाता है. तो endometrium starts to degenerate in the absence of these two hormones. अभी एस्ट्रोजन भी नहीं है और प्रोजेस्टेरोन भी नहीं है, तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉर्म हुआ था वो starts to degenerate, या खत्म होने लगता है, शेड होने लगता है. ठीक है, now these tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through the vagina. तो जो ब्लीडिंग होता है हर महीना, जो 5 to 7 डेज का जो ब्लीडिंग होता है वो इस वजह से होता है. ये जो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग जो फॉर्म हुआ था यूट्रस में वो शेड होने लगता है. साथ साथ में ये जो oocyte है, ये जो ट्रैवल करके, ये तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया मैंने. अगर सपोज ये स्पर्म को मीट नहीं करता तो यही ओवम यहाँ से ट्रैवल कर करके आके ये लाइनिंग के साथ वो भी बाहर निकल जाता है. सो व्हाट हैपेंस, द टिश्यूज ऑफ द डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम, सिंस द प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आर नो मोर प्रेजेंट, the endometrium start to degenerate, and the tissues of degenerating endometrium and the unfertilized ovum are discarded out through the vagina. This is accompanied with continuous bleeding. ये प्रोसेस जो है डिस्कार्डिंग का प्रोसेस 5 से 6 दिन चलता है. इसलिए लेडीज को महीने में 5 से 6 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है. दिस इज द प्रोसेस दैट कॉजेज द ब्लीडिंग. Bleeding continues for approximately 5 days, and this process is called the menstrual cycle or menstruation. Okay, it's a very important cycle for women because of which babies are born. Now, unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. If the embryo is implanted, अगर embryo implant हो गया, then repetition of this cycle is temporarily stopped till
द डिलीवरी या पार्टूरिशन एंड देयरआफ्टर द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. जब तक बच्चा पैदा नहीं होता और उसका फीडिंग खत्म नहीं होता तब तक ये साइकिल रुक जाता है. हाँ, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू हो जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है. एंड द वुमन एक्सपीरियंस सीवियर पेन्स. इसलिए आपके घर में जो लेडीज है अगर महीने में कभी ऐसे थके हुए लगते हैं तो समझ जाओ उनका ये प्रोसेस चालू है, ठीक है. तो यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ देम ड्यूरिंग दैट टाइम एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट वुमन बिकॉज दे अंडरगो अ लॉट ऑफ पेन एंड difficulty during those 5 to 7 days. So this is the reason that it takes place. So you have to be very careful how you treat women. So now let's see what happens when there is fertilization taking place. Fertilization के टाइम क्या होता है मालूम है? 24 hours before fertilization the egg has finished meiosis and becomes a mature oocyte. हमने देखा था oocyte कैसे फॉर्म हुआ था, करेक्ट. When fertilized at conception the egg becomes known as a zygote. यहाँ पर fertilization हो गया. हाँ, फिर क्या उसको कहते हैं? उसको कहते हैं जाइगोट. एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया है. नाउ द जाइगोट ट्रेवल्स थ्रू द ओविडक्ट टू द यूट्रस. देख रहे? थ्रू द ओविडक्ट टू द यूट्रस. द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. देख रहे हैं? माइटोटिक डिवीजन 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा होता रहता है जब तक डे 5 में ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है. फिर 8 से 9 जो इसके बाद के 8 से 9 दिन तक ये के बाद यहाँ इम्प्लांट हो जाता है. किधर? यूट्रस के अंदर. इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज इंटैक्ट और जिसकी वजह से ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है. द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन and embryo is formed. The developing embryo must implant into the wall of the uterus, ठीक है, within 7 days or it will deteriorate and die. अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ये जो बच्चा फॉर्म हो रहा था वो फॉर्म नहीं होके वो मर जाएगा. तो meanwhile it is pushed towards uterus. Once it reaches the uterus it is implanted and further इसके आगे further development होता है. इसके साथ एन ऑर्गन कॉल्ड एज प्लेसेंटा इज फॉर्म फॉर द सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल. अगर ये इम्प्लांटेशन हो गया है तो इसके साथ साथ प्लेसेंटा करके एक ऑर्गन भी फॉर्म होता है जो यूट्रस में अटैच रहता है, जिसके थ्रू ये ऑर्गेनिज्म को नए बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली आफ्टर कितना टाइम लगता है? 9 months. 9 महीने के बाद एक बच्चा कंप्लीटली डेवलप होके इट इज बॉर्न. ओके. So now let's look at reproduction and modern technology. हमने बहुत केसेस में सुना है कि जहाँ couples are not able to conceive, यानी कि वो they are not able to have a baby. तो in that case what happens? What are the causes of infertility in women? See, infertility जो है जिसमें couples cannot have children is can be caused the reason can be both men and women. It is not necessary that only women can have problems because of which the baby is not formed. It can be because of men as well. So okay, तो women में what are the causes? Irregular menstrual cycle. जब ये menstrual cycle regular नहीं होता तो तब इनफर्टिलिटी हो सकता है, या तो जब oocyte प्रोड्यूस करने में मुश्किल होता है, जब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहे तो भी oocyte प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होता है. फिर अगर ये ओविडक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ किसी वजह से इसमें कुछ कोई डिसीज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी एक रीजन हो सकता है. फिर जब एम्ब्रियो फॉर्म हो गया लेकिन इधर इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, दीज आर 4-5 रीजंस बिकॉज ऑफ विच वुमेन फेस इनफर्टिलिटी इश्यूज. व्हाट आर दे? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग oocytes, obstructions in the oviduct and problems in embryo implantation in the uterus. Okay, and what about men? In men it is the absence of sperms in the semen. Semen प्रोड्यूस हुआ लेकिन अंदर स्पर्म नहीं है तो यहाँ पर स्पर्म नहीं होगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा. ओके, तो मेन में भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पर जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें सीमन तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं है, या तो जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं उनका मूवमेंट इज नॉट फास्ट इनफ टू रीच द एग ऑन टाइम एंड एनॉमलीज इन द स्पर्म, या तो स्पर्म में कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो अटैच नहीं हो पाता. तो ये केसेस में 2-3 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है जिससे ऐसे कपल्स भी बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, वी लुक एट फ्यू मेथड्स थ्रू विच मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प इनफर्टाइल कपल्स टू reproduce.
ओके, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसे इनफर्टाइल कपल्स को कैसे हेल्प कर सकता है? हम्म? अभी एक तो प्रोसेस है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का या आईवीएफ। आपने कॉमनली देखा होगा आजकल बहुत हॉस्पिटल्स में आईवीएफ का के थ्रू कपल्स को बच्चा पैदा करने के लिए हेल्प मिल रहा है, क्योंकि दे कैन नॉट डू इट ऑन देयर ओन, सो दे आर यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? in vitro fertilization is a process where fertilization is done by extracting eggs from the woman and retrieving a sperm sample from the male. Okay, so IVF is the process of fertilization by extracting eggs, retrieving a sperm sample and then manually combining an egg and sperm in a laboratory dish. The embryo is then transferred to the uterus. तो क्या किया जाता है? लेडी से एग्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और मैन से स्पर्म लिया जाता है, ठीक है। फिर इन दोनों को लैब में क्या करते हैं? लैब में दे आर कंबाइंड, ठीक है। ये यूजुअली किधर कंबाइन होता है? स्पर्म एंड एग, इट कंबाइंस इन द फेलोपियन ट्यूब में मीट करके वहां से फर्टिलाइज होके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लेकिन वो नॉर्मल प्रोसेस हो नहीं पाता, तो ये लोग क्या करते हैं? लेडी से एग एक्सट्रैक्ट करते हैं और मैन से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके लेबोरेटरी में कंबाइन करते हैं, ठीक है। और फिर इससे जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, transferred into the uterus of the woman, ठीक है, ठीक है। This is used where in the cases where sperm count is less and obstacles are present in the oviduct. हमने जो प्रीवियस डायग्राम में देखा था, वो जो ओविडक्ट है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या तो आदमी का स्पर्म काउंट लेस है, तो ये प्रोसेस आईवीएफ प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो यूट्रस, वो लेडी का यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये लैबोरेटरी में कंबाइन करके उसकी यूट्रस में डाला जा सकता है। लेकिन ये सरोगेसी में क्या होता है? सरोगेसी में क्या होता है? द oocyte is collected from the ovary of the woman having the problem in implantation in the uterus. सरोगेसी में ऐसा प्रॉब्लम है कि इसमें तो यही लेडी और ये मैन, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, तो वाइफ के यूट्रस में ये जो कॉम्बिनेशन लैब में किया है लेकिन वाइफ के यूट्रस में डाला है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो यूट्रस है, शायद वाइफ के यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस क्या करते हैं? एक दूसरी लेडी के यूट्रस में ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। oocyte इसी से कलेक्ट होगा। oocyte is collected from the ovary of the woman having the problem in the implantation, and that oocyte is fertilized in the test tube with the help of sperms collected from her husband. Okay, इन्हीं का है स्पर्म और एग, ठीक है। लेकिन ये लेडी के यूट्रस में एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से ऐसे लेडीज भी हैं जो अपना यूट्रस डोनेट करते हैं। डोनेट इन द सेंस बोलते हैं कि हम लोग आपका बेबी अपने पेट में रख के वी विल डेवलप द बेबी टू फुल टर्म एंड गिव इट टू यू, ठीक है। द एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड। सेम प्रोसेस वही है, लैब में एम्ब्रियो को लैब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है और उसमें से जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, ये एम्ब्रियो को किसी और लेडी के, थर्ड लेडी है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है, तो इसका यूट्रस में प्रॉब्लम है तो ये लेडी के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा, ओके, बेबी। लेकिन आईवीएफ में क्या होता है? इसी के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा। लेकिन अगर इसके यूट्रस में प्रॉब्लम है तो दूसरी लेडी के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा। सच ए वुमन इन हुज यूट्रस द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड द सरोगेट मदर। इसको हम लोग कहते हैं सरोगेट मदर। आपने सुना होगा शायद सरोगेट मदर, ठीक है। ये बहुत सारे कपल्स को इसकी वजह से बच्चे हो जाते हैं, ओके, क्योंकि यूज तो इन्हीं का स्पर्म और ओवम किया है लेकिन मदर के इसके यूट्रस में इम्प्लांट किया इनका बच्चा, क्योंकि इसका यूट्रस में प्रॉब्लम है, ओके। सो दिस कॉल्ड सरोगेसी। अभी एक और है स्पर्म या तो सीमन बैंक। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हेल्दी मेल्स के, जो बहुत ही हेल्दी मेल है, उनका स्पर्म कलेक्ट करके
स्टोर किया जाता है, ठीक है. सीमन एजैकुलेटेड बाय द डिजायर्ड मैन इज कलेक्टेड आफ्टर द थरो फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप एंड स्टोर्ड इन द स्पर्म बैंक. तो जो ये स्पर्म डोनेट करते हैं ये लोग बहुत ही हेल्दी मेल्स होते हैं. हेल्दी मेल्स फिजिकली मेंटली हर तरीके से दे आर गुड. They are having no defects. Okay, they are completely checked up medically and physically, and then their sperms are taken and stored in the sperm bank. तो अभी सपोज ऐसा एक कपल आया, ओके, ऐसा एक कपल है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, ओके, और ठीक है, ऐसा एक कपल है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है. एज पर देयर विश the oocyte of the woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique. इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली मेल के साथ है, फीमेल के साथ नहीं, कि मेल के स्पर्म काउंट में या किसी चीज में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है. तो दिस लेडी व्हाट शी विल डू, शी विल गिव हर oocytes. ठीक है, व्हाट शी विल डू, शी विल गिव हर oocytes. और ये oocyte is fertilized using the same technique, IVF technique in the lab. From whose semen? फ्रॉम द सीमन बैंक. और ये किसका सीमन है किसी को पता नहीं, ठीक है. दिस इज हिडन. किसने डोनेट किया वो किसी को पता नहीं रहता, ठीक है. तो ये स्पर्म बैंक में से दैट वन ऑफ द स्पर्म्स विल बी टेकन एंड हर oocyte विल बी combined in the laboratory, same like the IVF technique, and then implanted into her uterus. अच्छा, एंड इसका नाम सीक्रेट रहता है. नोबडी नोज किसका स्पर्म था, लेकिन इट इज नॉट द स्पर्म ऑफ हर हस्बैंड, बट दे कैन स्टिल हैव चिल्ड्रन. सो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल या तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इन फर्टाइल कपल्स टू कंसीव. सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट आर ट्विन्स. ओके, व्हाट आर ट्विन्स, which what are twins, which we will see in the next video. Okay.